Shaina NC and Manish Malhotra join hands with the Cancer Patients Aid Association to support the wonderful work they are doing. The Cancer Patients Aid Association is a registered NGO working tirelessly in the field of cancer care for the last 45 years. Their objective is to adapt for Pidilite Industries Limited, their flagship brand Fevicol, a name synonymous with adhesives and amongst the most trusted brands in India. Oh God! क्या करूं मैं? ये तो बहुत दुविधा में हो गया कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी पहला नहीं हुए थे जब ये सोसाइटी शुरू की गई थी। इन 46 सालों में हम लोगों ने 3 लाख से ज़्यादा मरीजों की मदद की है और उनकी जान बचाई है। बाकी सब एक्टिविटी तो आपने ऑडियो विजुअल पे देखी होगी और भी सुनेंगे। इसके साथ सिर्फ मैं आपको सबको धन्यवाद कहूँगा। बिग थैंक यू टू ऑल एंड द बिगेस्ट थैंक यू टू आवर चीफ मिनिस्टर साहब। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. This is why we love him. Has helped 3 women. She had to be daughter of Nana Chudasama, the one we love. He is the Padma Shri. He is with us, watching his daughter. So proud every single minute. Shaina, please, can we have a few words from you? Let me start by saying that this city of ours, Mumbai, truly rocks. All right. 10,000 people here. No fussing of who's sitting at the back, who's sitting in the front. All of you all here to support Cancer Patients Aid Association. Our most dynamic Chief Minister and probably the youngest you've ever seen who doesn't have white hair, Devendra Fadnavis ji, his banker, accomplished wife, Amrita, my friend. Of course, Manish Malhotra, who is probably the finest designers in the country. Do you all agree? Yeah. I'd like to at the outset thank these 3 stars, and I really want you to clap for them. YK Sapru, Sillu Jasdanwala and Rekha Sapru and Shelja standing in the background. The work they do is phenomenal. I was introduced to this NGO when I was 18 by my father, Nana Chudasama, who doesn't normally come out, but him and my mother Munira are here to support the cause as well. I'd like to thank them for introducing me to an NGO that truly delivers when it comes to treating cancer patients. He always taught me that there are 2 types of people. They're givers and they're takers. The givers sleep well, the takers eat well. And one of the givers is Mr. Parekh standing here on stage. Pidilite and Fevicol have always supported by being generous. Of course, Asit Kotecha, Mr. Popley, State Bank. I'd like to thank all of you all for coming here, and most importantly, the 65 achievers from different walks of life. This is the first time that women will see all age groups, all sizes, and this time the men will also see the same. So you will go home thinking that yes, fashion and glamour needs to be meaningful. You need to leave supporting the cause, and promise me, a lot of y'all will donate generously to Cancer Patients Aid Association. If you do, it really makes this in श्री सप्रू जी, कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन के इस कार्यक्रम को लगातार जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, ऐसे मनीष जी और शायना जी, यहाँ मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित, आई एम डिलाइटेड टू हैव द मोस्ट यंग एंड डायनामिक पर्सनालिटी ऑफ मुंबई, नाना चुडासमा amongst us. So let's give a big hand to Nana. उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि पिछले 46 सालों में लगातार
उन्होंने कैंसर पेशेंट्स की मदद की है और करीब 3 लाख पेशेंट्स को इस एसोसिएशन ने मदद दी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका फैलाव पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेज़ी से हुआ है और तकरीबन 10 लाख पेशेंट्स इसमें सालाना ऐड हो रहे हैं, जो हमारे लिए एक मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत कंसर्न की बात है। और मूल रूप से बहुत लंबे समय तक इसकी ट्रीटमेंट चलती है और उसका एक आर्थिक भार भी, एक फाइनेंशियल बर्डन ये पेशेंट्स के ऊपर आता है और विशेषकर केवल पेशेंट नहीं तो पूरी फैमिली उसमें अफेक्ट होती है। और इसलिए एक सपोर्ट सिस्टम समाज की ओर से उसमें खड़ी हो, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बहुत अच्छी बात है। और कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन वो सपोर्ट सिस्टम के रूप में उनके पीछे खड़ा है और इसलिए मैं बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। साथ ही में मैं मनीष जी का और शायना जी का अभिनंदन करता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा शो जिसमें सारे पीपल फ्रॉम ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ, सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मैं 2 साल पहले भी इस कार्यक्रम में आया था, तब मैंने देखा कि उस समय खुले वातावरण में कार्यक्रम हो रहा था, बारिश थी लेकिन कोई वहाँ से हटा नहीं और पूरी बरसात में बहुत अच्छा शो, क्योंकि इसके पीछे एक मैं ऐसा मानता हूँ कि पैशन है, एक इमोशन है। और इसलिए मैं इन दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक अच्छा काम हम लोग मिलकर कर रहे हैं और इस बात की भी मुझे खुशी है कि आज यहाँ पर मुंबई के हुज़ हू सारे महत्वपूर्ण लोग मुझे दिखाई पड़ते हैं कि जो इस सपोर्ट के लिए, ये मुंबई की एक अपनी खासियत है कि जब भी कोई कॉज आता है तो आम मुंबईकर जो होता है वो सामने आता है और मुंबई के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो एफ्लुएंट है, जो यहाँ के धनिक लोग हैं या जो समाज में अच्छा कार्य करने वाले लोग हैं, सारे के सारे हाथ में हाथ मिलाकर उस काम के पीछे खड़े होते हैं और वही मैं आज यहाँ पर देख रहा हूँ। इसलिए आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस अच्छे कार्यक्रम में आपने मुझे भी यहाँ बुलाया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सिर्फ एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जब आप बोलते हैं कि मनीष जी, मेरे हस्बैंड का भी नाम है मनीष, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड टॉलरेटिंग द लॉन्ग आवर्स। आई थिंक वी नीड टू ऑल्सो एक्नॉलेज देव जॉली, wherever he is, clap for him. And I think the entire team that is going to be walking, let's make this different to other shows. When they come on, if they slip, if they fall, please clap for them because they're all not professional models and real achievers from different walks of life. Thank you. Enjoy the show. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you. It's been a privilege. Please give it up for our dignitaries on stage. This evening has been made special because of them.
request our very special guest, Amir Khan, to say a few words. Well, good evening, everyone. It's a real pleasure to be here today. I'd like to congratulate Shaina and Cancer Patients AIDS Association for the work that they're doing in helping people fight against this disease, people who are less privileged than us. And all the people, I think, gathered here today on the stage and in the audience are people who support this cause. So it's great to be here today. And a small message to all those who are fighting cancer today. I think these two young girls show us that this battle can be won. It's a big inspiration. Thank you. Huge round of applause for Amir Khan. And for all these 65 wonderful people who have given time. Thank you.
आप कहते हैं कि आपको नागरिक की हैसियत से ये अधिकार मिले। अगर मुझे अपने अधिकारों के प्रति सचेष्ट नहीं करेंगे आप, मुझे मेरे अधिकारों के प्रति मुझे खुद ही नॉलेज ही नहीं होगी तो मैं अधिकारों की मांग कैसे करूँगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अधिकारों की मांग करें। जब स्वास्थ्य की बात आती है, कैंसर की बात जैसे आती है कि कैसे इससे लड़ूं। कई बार हमारे देश में कह दिया जाता है कि कर्क रोग हो गया, अब तो आपका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप देखते हैं कि इतने सारे लोग हैं। मेरी फिल्म इंडस्ट्री में मैं आपको बता सकता हूँ, इस समय ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं सलाम करता हूँ, जो इस वक्त कैंसर से जूझ रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। डायरेक्टर्स हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, ऐसे लोग जिनको मैं जानता हूँ, जिनको कैंसर है, उसके बावजूद वो लड़ रहे हैं। और उन लोगों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज वो आपका हथियार बनता है कि किस तरह से अपना ध्यान रखना है, कहाँ पर आपको इसके लिए चिकित्सा मिलेगी। और ये इन्फॉर्मेशन के लिए लगातार काम करते रहना चाहिए। मेरा सौभाग्य है कि मैं फिल्मों से जुड़ा हूँ और कम्युनिकेशन के प्रोफेशन से जुड़ा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कम्युनिकेट करता रहूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन शो रहा। और सीपा जैसे कि बोलते हैं कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन, उनके लिए हमने आज रैंप वॉक किया। कॉज था, मैं पहले से ही सीपा के साथ जुड़ी हुई हूँ क्योंकि पिछले साल मैंने सीपा में 25 कैंसर पेशेंट्स को राखी बांधी थी। तो मैं इनके साथ पहले से ही एसोसिएटेड हूँ क्योंकि विवेक ओब्रॉय, मैंने ग्रैंड मस्ती की थी उनके साथ, उन्होंने मुझे इस एसोसिएशन के साथ मिलवाया कि आप इनके साथ जुड़ें। और मेरी एसोसिएशन के साथ पिछले साल ही शुरू हो गई थी। सो व्हेन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम शाइना एनसी दैट प्लीज़ वॉक द रैम्प, एंड आई हैड टू डू इट बिकॉज इट्स फॉर अ कॉज, वी रेजिंग फंड्स फॉर कैंसर पेशेंट्स। एंड मैं खुश नसीब हूँ कि मैं ऐसा कुछ कर पाई हूँ क्योंकि बहुत दुख होता है कि इतने मुझे उन पर अफसोस नहीं होता है। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि तरस खाना चाहिए। बहुत ही ये लोग बोल्ड हैं, ब्रेव हैं, हम लोगों से ज़्यादा ब्रेव हैं। मुझे नहीं लगता मैं इतनी ब्रेव हूँ या मैं इतना बड़ा दुख झेल पाऊँगी, लेकिन ये लोग कर पा रहे हैं, ब्रेव हैं। और ये लोग खाली वक्त में काफ़ी अच्छे हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं। तो हमें कुछ सीखना चाहिए इन लोगों से। और आज आमिर खान भी ही वॉक एज अ शो स्टॉपर, सो वी ऑल वर देयर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। डिफरेंट फ्रेटर्निटी से काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। प्रसून जोशी जी थे, चेतन भगत थे, आमिर खान थे, दिव्या खोसला, लॉट ऑफ पीपल। वी ऑल वॉक द रैम्प फॉर सीपा कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन। आई विश मैं फ्यूचर में भी इनके लिए कुछ कर पाऊँ और इन लोगों की मदद में हम लोग आ पाएँ और ये पैसा जो फंड्स रेज हो रहे हैं इनके काम आ पाए। काफ़ी एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट वंस आई विल हैव किड्स, आई विल मेक श्योर कि मेरे बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिले। और जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं और सोचते हैं कि कुछ भी कर लेंगे, पेरेंट्स का बिजनेस संभाल लेंगे और नॉलेज नहीं होती है। आजकल कितने रेप केसेस भी हो रहे हैं बिकॉज चिल्ड्रन दे नॉट वेरी वेल अवेयर। बच्चों को आपको सिखाना चाहिए, जितने भी छोटे लड़के हैं, बड़े हो रहे हैं। तो एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेप केस तो बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ नॉलेज डेफिनेटली लीड्स यू टू थिंग्स लाइक दैट। अगर आप अपने बच्चे को अवेयर रखेंगे, बताएंगे, एजुकेशन देंगे, ज़रूरी नहीं दैट यू हैव टू बी लिटरेट और यू हैव टू बी लाइक अ इंजीनियर और अ लॉयर। यू कैन बी सेल्फ एजुकेटेड। यू नीड टू जस्ट अपग्रेड योर चाइल्ड, व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड एंड ऑल ऑफ दैट। थैंक यू। क्या कहना चाहिए कि कितना महत्वपूर्ण होता है कैंसर जैसी इन चीज़ों को अवेयरनेस फैलाना, या इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना है? सभी ने मिलकर वॉक किया है, यहाँ पर सब सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, CPAA एक ऐसी संस्था है जिनके साथ मैं आज नहीं जुड़ी हूँ सिर्फ इस रैंप वॉक के लिए। उनके साथ मैं 7-8 साल से काम कर रही हूँ। तो मेरा उनका एसोसिएशन बहुत ही लंबा रहा है। मैं समझती हूँ 7-8 साल से भी पहले, 10 साल से। तो मैंने उनके लिए बहुत सारे कैंप्स किए हैं, बहुत सारे कैंप्स। इनफैक्ट अभी एवरी मंथ ऑलमोस्ट होता है मेरा काम उनके साथ। मैं जाती रहती हूँ उनके पास। और बहुत सारे औरतों के कैंप्स होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन कैंप्स, ब्लड कैंसर डिटेक्शन कैंप्स, या फिर तंबाकू सेवन जो करते हैं उनके लिए भी डिटेक्शन कैंप्स। तो बहुत सारे कैंप्स में मैं सहभागी होती हूँ। मैंने खुद अपना डिटेक्शन उनके साथ ही किया है, मतलब मैं भी अपना टेस्ट कर चुकी हूँ उनके साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक आम जनता है उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ कितने महंगे होते हैं। थोड़ा अगर सर्दी ज़ुकाम भी हो, कुछ टेस्ट करने हो, इतने सारे टेस्ट लिखे जाते हैं। और कैंसर तो इतनी बड़ी बीमारी है,
और उसका एक खौफ है, एक डर है सबके मन में, मेरे भी मन में है, हर किसी के मन में होता है। और अगर किसी गरीब इंसान को वो रोग होता है तो फिर वो बेचारा कहाँ जाएगा, कैसे कीमोथेरेपी करेगा। कुछ लोग तो बिना ट्रीटमेंट लिए ही मर जाते हैं। तो मुझे लगता है CPAA जैसी संस्था है जो गरीबों तक पहुंचती है, उनकी मदद करती है, और इसीलिए उनकी मदद में हम जैसे लोगों ने, जो लोग हमें सेलिब्रिटीज़ कहते हैं, हमको उनकी मदद करनी चाहिए। तो मुझे लगता है बिना झिझक हर किसी सेलिब्रिटी को, या जो बड़े लोग हैं, लॉयर हो या डॉक्टर हो या किसी मतलब हर वॉक में जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको उनकी मदद करनी चाहिए। तो बहुत खुशी हुई। अभी हम पैसे लेके तो बहुत जगह पर जाते हैं, लेकिन बिना मूल्य अपनी सेवा देना, इसका एक अलग आनंद होता है। और वो भी एक ऐसे NGO को जो सचमुच कार्यरत है, सचमुच अच्छा कार्य करती है। सोनाक्षी, पहले आपसे कैसा रहा आज का ये अनुभव, एक नेक काम से जुड़ना? आई थिंक उसी में ही हमारी एक बहुत बड़ी जीत है। मैं तो इसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा बनी हूँ आज, बट द एक्चुअल हीरोज आर स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू द मनीष एंड शाइना। आई थिंक जो काम ये हर साल ईयर आफ्टर ईयर करते आ रहे हैं, इतनी अच्छी आउटकम होती है। आज मैंने सुना 10,000 लोग आए थे इस शो के लिए, एंड इट्स ऑल गोइंग टुवर्ड्स अ गुड कॉज, यू नो। और हम इसके लिए जितना भी करें वो कम होगा, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आज मैं इसका एक भाग बन पाई अपने छोटे से भी। बेटर है आज, बट आज मुझे वो पिंक पट्टी निकालनी पड़ी क्योंकि ये आउटफिट के साथ मैच नहीं किया। अगर मैं सोफी वाली पिंक आउटफिट पहनती तो फिर शायद मैं वो पहन भी लेती। मैंने पैकेज पहना हुआ है कि नहीं। सोनाक्षी, स्टेज पर आज आमिर भी चले, ये महत्वपूर्ण कॉज है जिसमें सब लोग आप लोग शामिल हो पाते हैं, फिल्म सेलिब्रिटीज। जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉज है, एंड आई थिंक हम अगर जितने भी लोग आते हैं शायद ये सोच के आते हैं कि हाँ हमें स्टार्स देखने मिलेंगे या हमें एक अच्छा शो देखने मिलेगा, अच्छे सिंगर्स देखने मिलेंगे, बट उसमें भी एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हर जो एक टिकट बिकी जाती है वो एक बहुत ही अच्छे कॉज के लिए जाती है, एंड वे हैप्पी कि लोग ऐसे आए एंड इस तरीके में पैसे खर्च कर अपने जो एक गुड कॉज के लिए जा रहे हैं। तो या इट्स अ गुड थिंग अगर हम इसका हिस्सा बने और लोगों को इसमें हिस्सा लेने का। हम वापस से आप पे आते हैं, पर मनीष से बात करें। मनीष, आज की इस संध्या के बारे में आप कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे? ये मेरा एक्चुअली 4th ईयर है दिस एसोसिएशन, जो CPAA कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन, और शाइना ने काफ़ी सालों से इसके साथ एक इवेंट किया है। एंड आज का जो 10,000 क्राउड था, उनमें से कुछ लोग भी अगर कंट्रीब्यूट करेंगे और कुछ डोनेशंस देंगे टू द कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन, और जो कैंसर से सफरिंग चिल्ड्रन है या बहुत से पेशेंट्स हैं, उनकी मदद हो जाएगी। एंड दैट इज व्हाई वी पुट अप दिस शो, एंड आई रिक्वेस्टेड माय फ्रेंड शेखर, who is brilliant, and Sophie, who has run here and got stuck in traffic and taken a motorbike and hitchhiked, and she's reached here anyhow. Freddie, who's been my friend, a supermodel, and now he's an actor. All of us are here tonight for this cause, and I just feel कि मैं इतने फैशन शोज करता हूँ, और अगर ये फैशन शो से कुछ एक किसी का भी एक कैंसर की मदद हो जाए तो आई फील अकम्प्लिश्ड एंड रियली नाइस। सोफी की मौत आज चिल्ला रही थी रोड पे, सबको मेरे पास मैंने देखा अपने ये वाकई ये मुंबई में ही हो सकता है कि आप कहीं फंसे हों और आप एक बिल्कुल अनजान आदमी से कह सकते हैं कि प्लीज़ अपनी बाइक दे दो, और मैं और मेरे हेयर स्टाइलिस्ट उनकी बाइक लेकर यहाँ आए हैं। Me with rollers in my hair, and that guy on the bike has sat with my mom in the car and comes. And that's the spirit of Mumbai. So we all in Mumbai should feel very proud and happy that we are in Mumbai, a city which is so lovely. मैं याद दिलाना चाहूँगी कि CPAA के शो के लिए 2 साल पहले हम सबने बारिश में वॉक किया था, and that is the spirit of this show. Everybody comes with तो मुझे जब कहा कि बारिश हो रही है तो मेरा फर्स्ट आपका शो क्या करें, क्योंकि तो मैंने एक चीज़ पूछी कि ऐसे क्राउड है, तो ऐसे 700 क्राउड विद अम्ब्रेलाज वेटिंग, आई 7,000 so I said we will walk, and सब कपड़े डैमेज हो गए, but I took on that the show must go on. ऐसे लोग जो आए तो सही में ग्लैमर मीन्स समथिंग। नहीं तो आप फैशन शोज देखते हैं, घर जाते हैं, कोई सोशल कॉज के बारे में सोचता नहीं। सबसे आसान है एक चेक काटना, सबसे कठिन है आपका वक्त देना,
और ये सभी स्टार्स ने अपना वक्त दिया है, तो हैट्स ऑफ टू ऑल। सोनाक्षी, आजकल लोग बहुत फिल्म इंडस्ट्री में बीमार पड़ रहे हैं, स्वाइन फ्लू बहुत तेजी से फैल रहा है। तो किसको स्वाइन फ्लू विनोद चोपड़ा जी की वाइफ को भी हुआ, बेटे को भी हुआ। आप स्वाइन फ्लू का बड़ा हिस्ट्री रख रहे हैं? फिल्म इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री के बाहर भी लोग बीमार पड़ रहे होंगे, सो आई थिंक वी शुड रियली बी केयरफुल एंड आजकल वैक्सीन आ गए, सो आई थिंक पीपल शुड टेक द नेसेसरी प्रिकॉशंस एंड whoever sick we wish them a very very speedy recovery। हमें आपकी भी काफी चिंता हो रही है सोनाक्षी, कहीं आप मैं एकदम फिट हूँ। मैम एक मिनट, बजट आया है और एंटरटेनमेंट वालों जी ये जैसे कि ये बहुत अच्छा कॉज आपने बोला, उससे पहले भी आपने एंटरटेनमेंट कॉज के साथ की थी, यही जगह थी, आप कितना डिफरेंस फील करेंगे उस कॉज? सॉरी कौन सा कॉज? इससे पहले आप इस जगह पर आई थी, तभी भी आपने चैरिटी भी की है, आज भी चैरिटी भी आई है, तो कितना फर्क है? नहीं, आई मीन हर शो अलग अलग होता है, हर किसी का एक अलग अलग पर्पस है, उसका एक अलग पर्पस था, इसका एक अलग पर्पस है, बट कॉज में भी द बिगर पिक्चर वे लुक एट इट, हाँ पैसे चैरिटी को गए थे एंड दैट्स व्हाट आई मीन वी शुड बी हैप्पी अबाउट। मैं एक बात कहना चाहूँगा, किस तरह से ये चीज़ प्रेजेंट की जा रही है, वो चीज़ किस तरह से लाई जा रही है, वो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया था, ये बड़ी शालीनता के साथ प्रेजेंट की गई है चीज़। जी नो कमेंट, थैंक यू। मैं एक बात कहना चाहूँगा आज की, आई थिंक दैट हम लोग जैसे हम लोग इतने फैशन शोज करते हैं, मगर एक बहुत सीरियस कॉज है, एक बहुत सीरियस बीमारी है, और उसके लिए अगर हम लोग आ जाएँ, शेखर एक्चुअली लंदन जा रहे थे और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आज इस शो के लिए आए एंड उन्होंने कहा कि मनीष मैं लंदन कल जाऊँगा बट मैं आज इस शो पे ज़रूर आऊँगा। फ्रेडी was going on a shoot for an ad and I said no, you have to do it. So you know, people who are there with the spirit that Sophie came, the spirit that Sonakshi came. Sonakshi is a dear friend and actress who I love and I admire as a person, and whenever I ask her to do something, she's one actor who says yes. So I think she's a youngster and a star today, and someone who feels for things and is there for them. And I think that's she's a role model. She's a role model to a lot of youngsters. हमारे दोस्त हैं, फिल्म इंडस्ट्री से हैं, उनके बिजी शेड्यूल को छोड़ के वो अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और हम जैसे लोगों को एक साथ कुछ करने का मौका मिल रहा है। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू डू समथिंग फॉर दिस कैंसर पेशेंट्स, और वी आर वेरी ऑनर्ड टू बी हियर, वेरी ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ बिग नोबल कॉज, और बहुत खुशी होती है कि हमारे दोस्त कर रहे हैं तो हम भी कुछ करें साथ में, एंड दैट्स व्हाई ऑल ऑफ अस आर टुगेदर हियर फॉर यू पीपल, फॉर कैंसर एसोसिएशन। तो हर बार मैं बिजी होता हूँ और मैं कह रहा हूँ कि अगर शाना कहती है ये शाना कॉज में 2 months बिफोर ये शो आ रहा है, मैं आप ही के साथ करूँगी, आपको होना पड़ेगा। सो शाइना येस ऑफ कोर्स मुझे बता देना, आई स्टार्ट री वर्किंग ऑन ऑल डेज एंड शोज। आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जैसे कैंसर शुरू होता है और फिर फैलता है धीरे धीरे, वैसे ही शाइना जी ने एक बहुत ही बढ़िया से इनिशिएटिव लिया है जो धीरे धीरे फैल रहा है, बड़ा हो रहा है, एंड इट इज आयरॉनिकली वी आर अगेंस्ट कैंसर। सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड हैट्स ऑफ टू मनीष एंड शाइना टू स्टार्ट ऑफ दिस एंड टू बिलीव इन टू इट। सबसे पहले तो इस कॉज के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिसे आप सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए थे, सारे सितारे एक ही रैंप पर थे, क्या कहना चाहेंगे? जी एक्चुअली मेरा तीसरा साल है CPAA के साथ जो एसोसिएशन है, वो थैंक्स टू मनीष मल्होत्रा एंड ऑफ कोर्स शाइना जिन्होंने ये पूरा सिलसिला शुरू किया। इट्स डेफिनेटली क्लोज टू माई हार्ट क्योंकि मेरे कुछ बहुत ही करीबी दोस्त हैव बीन अफेक्टेड बाय कैंसर, बट आई एम वेरी हैप्पी टू से द फाइटिंग इट एंड रिकवरिंग फ्रॉम इट। तो आई थिंक जितना करें कम है। It's the biggest killer that we have and we need to combat it in any way. So ऐसे events इतने special होते हैं क्योंकि न सिर्फ इंडस्ट्री से अलग अलग लोग इकट्ठे आते हैं, लेकिन जो इसका मीडिया कवरेज होता है और सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस मैं देख रही हूँ हर साल ऑडियंस बढ़ती जा रही है। I mean मुझे आज भी याद है 2 साल पहले जब हमने ये शो किया था आउटडोर, सडनली बारिश हो गई थी और सारे सितारे बारिश में चले थे, उसमें मैं भी थी, दिया भी थी, अमीशा से लेके हर एक उसमें बारिश में चले और ऑडियंस हिली नहीं, 7,000 लोग
लोग अम्ब्रेलास के साथ वहीं पे बैठ के शो देख रहे थे. That talks about the spirit, and today 10,000 people. Amazing. आज आप भागी आ रही थी, क्या रही थी? Actually, मैं पटना से लैंड हुई थी, मैं घर गई और फिर यहाँ आने के लिए हम इतनी बुरी ट्रैफिक में फंसे हुए थे कि बांद्रा से वर्ली तक 1.5 घंटा लग गया आज मुझे, और पहुँचने का चांस ही नहीं था. एंड देन माय अमेजिंग हेयर स्टाइलिस्ट हैरी ने कहा मैं किसी की बाइक ले रहा हूँ. मैंने कहा क्या? मैंने लाइफ में कभी ऐसा नहीं किया. मैंने कहा किसकी बाइक लेंगे, और कोई मुझे ले गया तो उन्होंने कहा नहीं मैं पूछता हूँ. तो उन्होंने गाड़ी रोकी, एक लड़के से कहा कैन वी टेक योर बाइक. उसने अपनी बाइक ही हमें दे दी. वो मेरी गाड़ी में बैठा, मेरी मॉम के साथ आया, और हैरी और मैं बाइक पे यहाँ पहुँच गए. एंड 15 मिनट्स है मेकअप एंड आई वॉज ऑन स्टेज. मैं मिस नहीं करना चाह रही थी, तो मैं चाह रही थी कि पूरी कोशिश से हम आएँ. अगर नहीं पहुँच पाते इट वुड हैव बीन सैड, बट पहुँच गया. जैसे कि आपने इस कॉज के लिए काफ़ी मेहनत की है, और एजुकेशन कितना ज़रूरी होता है इस कॉज के लिए अगर ऑडियंस के लिए? Obviously, education is of course the most important thing in our country for everything, not just for educating people on cancer. I think lots of people don't know कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि you can fight it. Just because you have cancer doesn't mean it's over. And you get lots of support groups now. You get some amazing treatment. और ऐसी भी फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि that's the end. Everybody has a chance. So I think education is really important. और मैं ये इसलिए कह रही हूँ because like I said, it's happened to friends of mine who battled it and are still battling it. होली की मेरी सबसे फेवरेट तैयारी यही होती है कि मैं घर में अपने आप को बंद कर लेती हूँ. मैं जब यहाँ मुंबई शिफ्ट हुई तो मेरी पहली 2-3 होलीज इतनी यादगार रही कि उसके बाद मैंने सोचा मैं छुप के बैठूँ तो वही बेहतर है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मेरे बाल नीले पीले लाल हो जाए. सो या बट ऑफ कोर्स इट्स एन अमेजिंग स्पिरिट और बहुत अच्छा लगता है. ऑफ कोर्स होली के गाने सबको अच्छे लगते हैं, और होली का जो माहौल होता है सबको अच्छा लगता है. एंड आई थिंक होली पे इंडिया इज प्लेइंग अ क्रिकेट मैच, तो मैं तो वो जम के बैठ के देखूंगी. हम चाहेंगे कि दर्शकों से एक बार इस अवेयरनेस के लिए अपना नाम लेके लोगों को अवेयर कर देते हैं. जी. हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ सोफी चौधरी और आज मैं यहाँ पे CPAA के फंक्शन पे यहाँ पे आई हुई हूँ. दैट्स अ कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन. आप सब इस कॉज को हेल्प कर सकते हैं. एजुकेट योरसेल्व्स एंड डोनेट सो दैट वी कैन सेव एज मेनी लाइव्स एज पॉसिबल. यू कैन डू दैट ऑन www.cancer.org.in. Please make a donation. Please make yourselves more aware and help beat the big C.